This is second class after midterm examination. This is about the series solution uh, of a differential equations. First method is power series method, its convergence, and some examples, and and this is the Legendre polynomials. So first of all, uh, why we are studying this chapter? This is chapter 4 of your book. Why we need to study this chapter? This is my first question, and I have to answer this question. Why we are moving towards chapter 4? So आप लोगों को ये पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, लेकिन हर फिजिकल प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट ऑर्डर में मॉडल हो जाए. So therefore we need to study chapter 2. That is, if a differential equation order is 2 or more than 2, then we are moving towards chapter 2 to solve, to use the method of undetermined coefficient or the method of variation of parameter. So then every differential, if the order of differential equation is higher, then we are converted into system of first order differential equation. That is, we are studying next chapter. So now why we are studying this chapter? Because you know that if there is some weakness in your previous methods, so you always move forward. So what is the weakness? अगर आपको याद है तो क्या वीकनेस थी जो जो प्रीवियस चैप्टर्स में रह चुकी हैं? याद है आपको? वीकनेस हमेशा याद रखनी चाहिए. when you have some weakness, then you can move forward. This is also in real life. So if you remember, हमने काशी यूलर इक्वेशन पढ़ा था, याद है? काशी यूलर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था. यस सर, याद है. अच्छा जी, काशी यूलर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि if you have a second order differential equation with y double dash if there is x square, if y dash with y dash there is x, and with y there is no x. So this is called Cauchy-Euler equation. इसके लिए हमने प्रोसीजर डेवलप किया था. दैट इज, हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे. लेकिन अगर इस x को मैं x स्क्वायर को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लूँ, इस x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लूँ, so then it is not possible to handle it. Actually then it will not be a Cauchy-Euler equation. So हमने तो मेथड पढ़ा था Cauchy-Euler equation के लिए. So अगर ये Cauchy-Euler equation न हुआ, ये कुछ और वेरिएबल्स हुए, so then we are not able to handle this. Suppose if this is 1 plus x square, 2 plus x square, 1 plus x cube, only x cube. So we are not able to handle this by using the previous method. That is, if this is 1 plus x square, this is y double dash plus b. Suppose this is 1 minus x. This is y dash. This is plus c into y. This is equal to 0. So ये वीकनेस रह गई थी ना. So हमने थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा कि इस वीकनेस को हम खत्म कर सके.
इस वीकनेस, जो वीकनेस रह गई थी, उसको हम हैंडल कर सके। सो एक चीज नोट करें, ये आपको याद होगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस x minus x naught f dash of x naught plus x minus x naught square divided by 2 factorial f double dash of x naught प्लस अप टू सो ऑन। ये कौन सा सीरीज है, याद है? टेलर। जी, दिस इज टेलर सीरीज। एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, then it become Maclaurin series. F x naught is equal to 0, so this will become f of x is equal to f of 0 plus x square divided by 2 factorial f double dash of 0 divided by 2 factorial f double dash of 0 plus up to so on, so on, so on. So this is the Taylor series, and this one is the Maclaurin series. If you remember, this is the Maclaurin series, and this one is the Taylor series. अच्छा जी, आपको याद होगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको याद होना चाहिए कि हम किस फंक्शन को टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज में लिख सकते हैं। अच्छा जी, if a function is infinitely differentiable, then you can write it in the form of Taylor or Maclaurin series. Infinitely differentiable means if you have a function ex, e power x. So e power x is a function, if you differentiate it one, two, second time, third time, so it will be differentiated. जितनी टाइम आप उसको differentiate करेंगे वो differentiate होता जाएगा. So e power x can be converted, can be written in the form of Taylor series. Similarly, if you have sin x, cos x, tangent x, so tangent x का डेरिवेटिव कभी भी खत्म नहीं होगा, जितनी टाइम भी आप लेंगे उतनी टाइम वो डिफरेंशिएट होता जाएगा। Is it clear now? लेकिन अगर आप x क्यूब ले ले, पॉलिनोमियल ले ले, सो पॉलिनोमियल अब डिपेंड करता है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल हैं तो आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव इट विल वेनिश, वो जीरो बन जाएगा। If this is of second order polynomial, so after third derivative it will become 0, and on third derivative it will become 0. Similarly, fourth order derivative. So polynomial cannot be converted into Taylor or Maclaurin series. ये क्लियर हुआ ना जी? जी सर। अच्छा जी, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि किस फंक्शन को हम टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में जब आपका when your concept is clear on some topic, so you can use this topic for further development. जब तक आपका कंसेप्ट उस टॉपिक पे क्लियर ना हो, you are not able to use it in your future work.
ये हमेशा जहन में रख ले। अब मैं जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो जो नया टॉपिक है वो सीख ले। मैं डायरेक्टली स्टार्ट ले सकता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डेवलप your research level up to certain level। रिसर्च लेवल कैसे बनता है? रिसर्च लेवल आपका तब बनता है when you know your problem। Now here your problem is that you have some weakness in solving differential equation। this is your weakness। so रिसर्च में हमेशा आप वीकनेस सर्च करते हैं, उस वीकनेस को आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से या ख़त्म कर सके या उसको रिड्यूस कर सके। सो आजकल की रिसर्च में वीकनेस आप हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते ज़्यादातर केसेस में, बट यू कैन रिड्यूस दिस वीकनेस। आपको आगे पता चलेगा मेरे स्टेटमेंट का, अगर ये वीडियो आपके पास हो तो इस स्टेटमेंट का मेरा मकसद ये है कि साइंस सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आप वीकनेस को हमेशा के लिए मोस्टली ख़त्म नहीं कर सकते, बट यू कैन रिड्यूस एट। सो रिड्यूस में आप आगे आगे रिसर्च करते हैं एंड यू अपडेट योर वीकनेस, you reduce your weakness and on this way you move forward। सो ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है जहां आप रिसर्च पे जाएंगे, सो ये इस स्टेटमेंट को आप जब सुनेंगे तो हर जगह पे ये आपको काम देगा। अब वीकनेस क्या थी? वीकनेस ये थी कि यहाँ पे कि हम वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, मोस्टली वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ डील नहीं कर सकते थे। ये मेरा वीकनेस था। अब मुझे इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन नज़र आई, टेलर और मैक्लारन में और एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई। अब मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको। वो जब मुझे कॉमन नज़र आई तो मेरे जहन में आया कि क्यों न इसको यूज़ कर ले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए। अब वो क्या है जो दोनों में कॉमन है, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आप देख ले कि कोई भी फंक्शन जो इनफिनिटली डिफरेंशिएबल हो, यू कैन राइट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेलर और मैक्लारन सीरीज। Second is, Taylor or Maclaurin series always gives you a polynomial। ये हमेशा फंक्शन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद होगा, मेरे ख्याल में याद है। यस सर। हमेशा पॉलिनोमियल जो आपके पास फंक्शन होता है, वो एक्सपोनेंशियल हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, वो लॉग फंक्शन हो, जो इनफिनिटली डिफरेंशिएबल हो, मैं सिंपली ये कह सकता हूँ वो फंक्शन हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलर और मैक्लारन सीरीज। ई पावर एक्स का सीरीज आपको याद होगा, मैक्लारन सीरीज 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो वो एक राइट साइड पे जो फंक्शन होता है वो एक पॉलिनोमियल होगा। सो दो चीजें याद रख ले, एक ये उस फंक्शन को कन्वर्ट करता है जो इनफिनिटली डिफरेंशिएबल हो, और एक वो उस फंक्शन को किस फंक्शन में कन्वर्ट करता है, एक पॉलिनोमियल में। ये दो चीजें क्लियर हुई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। y होगा ना, y होगा। अब मुझे नहीं पता कि इसकी सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका सॉल्यूशन y होगा।
और ये भी मुझे पता है कि ये y एक फंक्शन होगा। यहां तक मैं क्लियर हूं कि इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो वो एक फंक्शन होगा। और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शायद फर्स्ट क्लासेस में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। जब हम यूजुअल क्लासेस लेते थे क्लासरूम में, तो आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि वो फंक्शन जितनी टाइम आप डिफरेंशिएट करेंगे वो डिफरेंशिएट होता जाएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। सो अगर वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फिर इस फंक्शन को हम मैक्लॉरेन सीरीज में नहीं लिख सकते। ये चीज कॉमन हुई ना दोनों में। तो मुझे क्यों मतलब जहन में आ रहे कि मैं उसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सर्च करूं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। इसलिए मेरे जहन में आया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन मैं आपको चूंकि रिसर्च लेवल का बता रहा हूं, सो मेरे जहन में ये आ रहे हैं कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इस फंक्शन को मैं फिर मैक्लॉरेन या टेलर सीरीज में लिख सकता हूं। सो इसलिए ये ट्राई कर रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज फॉर्म में होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा जी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इस मैक्लॉरेन सीरीज को एक सिंपल वर्ड में लिखना चाह रहा हूं। इसको मैं y का नाम दे रहा हूं। y या एफ ऑफ एक्स एक ही बात है। एफ ऑफ जीरो को मैं ए नॉट नाम दे रहा हूं, प्लस एफ डैश ऑफ जीरो को मैं ए वन का नाम दे रहा हूं, साथ में x लिख रहे हैं, प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई टू, इसको मैं ए टू का नाम दे रहा हूं, साथ में एक्स स्क्वायर, प्लस ए थ्री क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। मतलब ये जो कांस्टेंट हैं ये दोनों, इसको मैं ए टू का नाम दे रहा हूं। इसी तरह नेक्स्ट होगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिख लूँ और सिंपल वर्ड में लिख लूँ, सो इसको मैं n इज इक्वल टू जीरो अप टू इंफिनिटी ए एन एक्स पावर n, दिस इज y इज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं। जी सर। अच्छा जी, अगर आप n जीरो देंगे सो ये ए एन बिकम ए नॉट और x पावर जीरो विल बिकम वन। सो दिस विल फर्स्ट टर्म इज ए नॉट। इफ n is 1, so this will become a1 x power 1, so this will give you a1x. Similarly you can proceed and you can open the summation. लेकिन ये ए एन किसके इक्वल होगा? ए एन किसके इक्वल होगा? ये होगा, ये नोट करें, ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। इस एन का मतलब ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है, इस एन का मतलब डेरिवेटिव है, डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। सो अगर मैं इससे ए नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए नॉट विल बिकम एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई जीरो फैक्टोरियल मीन्स एफ ऑफ जीरो, दिस इज ए नॉट। अगर मैं ए को एन को वन दे दूं, सो दिस विल बिकम ए वन एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल, सो एफ डैश ऑफ जीरो, this is your a1. If you put n is equal to 2, this will become f double dash of 0 divided by 2 factorial. So this will give you this one. So an is actually equal to f of n 0 divided by n factorial. So remember this, that every Taylor series, Maclaurin series can be written in this form. Similarly,
अगर आप इस सीरीज को लिख ले, इस मैक्लारन सीरीज को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी a n x minus x naught whole power n. This is equal to, this is actually your Taylor series. This is whole power n. ये क्लियर हुआ ना? जी ये सर क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आप याद रख लें मैक्लारन सीरीज हम ए से लिखते हैं, ये जो जो नीचे गिवन है, दिस इज योर मैक्लारन सीरीज where an is this one and this is your Taylor series. So अगर सिंपल वर्ड में लिखना है तो ये आपका मैक्लारन सीरीज बना और ये आपका टेलर सीरीज बना। इसमें ए एन की वैल्यू क्या होगी? दोनों में ए एन की वैल्यू सेम होगी। ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन जीरो सॉरी एफ ऑफ एन एक्स नॉट, यहाँ पे तो एक्स नॉट होगा ना, डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे एफ ऑफ एन जीरो होगा। सो दिस इज योर ए एन एंड दिस इज योर ए एन एंड टेलर एंड मैक्लारन सीरीज। अच्छा जी, यहां तक हम क्लियर हो गए। अब ये नोट करें, दिस इज योर टेलर सीरीज एंड दिस वन इज योर मैक्लारन सीरीज। दिस वन इज योर, इन सिंपल वर्ड, दिस इज योर मैक्लारन सीरीज। हम आगे इसी को यूज करेंगे और दिस इज योर टेलर सीरीज। सो इसको अपने साथ नोट करेंगे। अच्छा जी, अब हम एक और काम करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि हर फंक्शन को, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा, और अब आपको ये याद होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो। कोई भी फंक्शन मुझे बता दे ताकि मैं उसको इस सीरीज फॉर्म में लिख सकूं, लेकिन वो फंक्शन जो इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल हो। मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ले रहा हूं। चले, मुझे पहले एफ डैश ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे एफ डैश ऑफ जीरो की जरूरत है। सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बिकम ई पावर एक्स। मुझे एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी लेना पड़ेगा। दिस इज ई पावर एक्स। सिमिलरली मुझे एफ ट्रिपल डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं फिलहाल वो नहीं ले रहा। सो एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा? सॉरी, एफ ऑफ जीरो ई पावर जीरो विच इज 1। एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा? दिस इज अगेन ई पावर जीरो विच इज अगेन 1। तो इन वैल्यूज को मैं टेलर मैक्लारन सीरीज में पुट कर लूंगा। एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या होगा? एफ डबल डैश ऑफ जीरो, दिस इज अगेन 1
अब इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे ई एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ 0 1 बन जाएगा, प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 इज अगेन 1, प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 is again 1. So this is your Taylor series, Maclaurin series expansion of e power x plus up to so on, this one. ये तो आपको क्लियर है ना? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा जी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको e पावर x किसकी इक्वल है? e इक्वल है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस up to so on this one. अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूं, अब मैं थोड़ा सा कन्वर्जेंस पे जाने लगा हूं। अगर मैं x को 1 दे दूं, लेट x इज इक्वल टू 1, सो e पावर 1 इज इक्वल टू, मैं फिलहाल 1 प्लस एक्स ले रहा हूं, दो टर्म्स। मैं दो टर्म्स ले रहा हूं, सो e पावर x क्या बनेगा? e पावर 1 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1। e पावर 1 किसकी इक्वल है? 2.73 है ना? और 1 प्लस 1 किसकी इक्वल है? 2 की इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। नो सर। नहीं हो सकते ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस x के साथ एक और टर्म ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अगर x 1 होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 0.5 के इक्वल होगा। अब ये किसकी इक्वल बना? ये 2.5 की इक्वल बना। अब ये दोनों इक्वल हैं। नो सर। नहीं है। अच्छा जी, हम एक और टर्म लेते हैं, सपोज प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सो x अगर 1 है तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 1 ओवर 6 आ जाएगा, एंड 1 ओवर 6 इज प्लस 0.16 प्लस 0.16, तो ये 2.66 बन जाएगा। अब इक्वल है। नो सर। अच्छा जी, तो मुझे और टर्म भी लेना पड़ेगा, समझ आ रहे हैं ना? यस सर, जितने टर्म ज्यादा होंगे उतना हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। जी जी। लेकिन अब अगर हम तो x अगर 1 हुआ तो मेरे ख्याल में ये x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 के साथ अप्रोक्सीमेटली कवर हो जाएगा। लेकिन e पावर x अगर हम 1 प्लस एक्स के इक्वल ले ले, ये तब ले सकते हैं अगर x सपोज मैं 0.2 ले लूं,
सो कैलकुलेटर अगर आपके पास हैं तो ई पावर 0.2 कैलकुलेट करें, मुझे वैल्यू बता दे, और मैं लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.2. So this is actually 1.22, which is equal to 1.2. तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना? जी जी सर। अच्छा जी। सो अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं तो ये e पावर x दो टर्म्स के साथ क्यों बैलेंस हुआ? जब x स्मॉल होगा, जब x स्मॉल होगा, x मीन्स योर डोमेन, x मीन्स योर डोमेन, नोट करें इस पॉइंट को। जब x स्मॉल होगा तो फिर ये सीरीज जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, दो तीन टर्म्स भी काफी होंगे e पावर x को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब x 1 है तो फिर मुझे 5 टर्म्स बैलेंस करने के लिए इसको लेने पड़ते हैं। लेकिन जब x ग्रेटर देन 1 बन जाए तो फिर जितने भी टर्म्स लेंगे वो e पावर x के साथ बैलेंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में x पावर 100, लास्ट तो हम नहीं कह सकते, x पावर 100 डिवाइड बाई 100 फैक्टोरियल भी होता है, x पावर 1000 डिवाइड बाई 1000 फैक्टोरियल भी होता है। अगर x 2 हुआ विच इज ग्रेटर देन 1, सो ये 2 पावर 100 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है ना? जी सर। सो इसको फिर हम इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको सीरीज में लेंगे। इट मींस कि ये सीरीज डाइवर्ज होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ये सीरीज डाइवर्ज हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, लेकिन ये सीरीज कन्वर्ज होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड greater or equal to 0 and less than or equal to 1. इसके दरमियान में अगर होगा, अगर x को 0 देंगे सो e पावर 0 इज 1, लेफ्ट साइड में आप सिर्फ 1 ले ले क्योंकि बाकी सारे 0 बन जाएंगे। सो x इज ग्रेटर or equal to 0 or less or equal to 1, so this series will converge. बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा जी। सो इसका क्या मतलब होगा? डोमेन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा फिजिकली? कोई बता सकता है? मतलब टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज तब आप यूज कर सकते हैं when the domain of your function is greater or equal to 0 and less or equal to 1. सपोज एक चैनल है, उसमें लिक्विड फ्लो कर रहे हैं, लिक्विड फ्लो, उस चैनल का लेंथ जो है, उस चैनल का लेंथ उस चैनल का वेट जो है, दरमियान में जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स का, वो है 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ये है। तो यहाँ पे जो लिक्विड इस बाउंड्री के साथ जो लिक्विड होगा वो सपोज 0 है और यहाँ पे 1 है, मतलब दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। सो आपका डोमेन कहाँ पे होगा? अलोंग y एक्सिस होगा ना। आपका लिक्विड कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है? अलोंग y एक्सिस एग्जिस्ट हो रहा है ना। सो 0 से लेके y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, बाउंड्री पे भी लिक्विड है और 1 पे जो बाउंड्री है वहां पे भी लिक्विड है,
So your y is greater or equal to 0 and less or equal to 1. This is your domain. डोमेन मीन्स जहां पे वो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करे. सो 0 से लेके 1 तक एग्जिस्ट हो रही है. सो अगर आपने इसके अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी, अगर आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, इस लिक्विड की टेम्परेचर, अगर आपने प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, इस लिक्विड की प्रेशर फाइंड करनी है. सो ऑल दीज आर एक्चुअली फंक्शंस. Velocity is a function, temperature is a function, and pressure is a function. And always किसी भी फंक्शन का डोमेन भी होता है. डोमेन इज नाउ 0 to 1. सो इस फंक्शन को जो वेलोसिटी है, या इस फंक्शन को जो टेम्परेचर है, या ये जो प्रेशर है, इसको निकालने के लिए अब आपका डोमेन 0 to 1 है. डोमेन मीन्स कि प्रेशर इसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुझे आउटसाइड प्रेशर के साथ काम नहीं है. टेम्परेचर मैंने इसी डोमेन में से फाइंड करना है, वेलोसिटी इसी डोमेन में से फाइंड करनी है. सो इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन 0 to 1 है. तो इन फंक्शंस को टेलर सीरीज के साथ आप डील कर सकते हैं. लेकिन अगर ये चैनल लेंथ 2 का बन जाए, 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, then you are not able to handle these functions by using the Taylor or Maclaurin series. ये क्लियर हुआ ना? Yes, sir. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं. Question is, solve y dash plus y, this is equal to 0 by power series method. By power series method. जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सीरीज सॉल्यूशंस, देन पावर सीरीज मेथड. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पावर सीरीज मेथड से सॉल्व कर लें. दिस इज योर क्वेश्चन. सो y डैश, ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अच्छा जी, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको हम टेलर या मैक्लॉरेन सीरीज में कैसे लिख लें? जी, अब आप मुझे बता दें इसका सॉल्यूशन क्या होगा. y नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन y होगा ना. y होगा इसका सॉल्यूशन. जी सर, होगा. अच्छा जी, इस y को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू व्हाट, समेशन n इज इक्वल टू 0 up to infinity an x power n, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस a3
चलिए ये टर्म भी लिख ले, एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन दिस। या तो समेशन फॉर्म में लिख ले या एक्सपेंड फॉर्म में लिख ले। तो वाई डैश क्या होगा? वाई डैश मीन्स इसका डेरिवेटिव। सो मैं समेशन फॉर्म में भी इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं और ओपन फॉर्म में भी ले रहा हूं। समेशन फॉर्म में क्या डेरिवेटिव होगा? ये n नीचे आ जाएगा जो x पावर n है, n बन जाएगा, a n साथ में आ जाएगा एंड x पावर n जो है ये x पावर n माइनस 1 बन जाएगा। और ओपन फॉर्म में अगर ले ले सो a नॉट तो 0 बन जाएगा, कांस्टेंट है, a1x का a1 बन जाएगा और a2x स्क्वायर का 2a2x बन जाएगा और a3x क्यूब का 3a3x स्क्वायर बन जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। मैंने समेशन फॉर्म में भी उसका डेरिवेटिव लिया, मैंने दोनों सेम है एक्चुअली। इस समेशन को अब आप ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। अच्छा जी, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। मैंने ये y क्या है? y इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। मैंने इसको टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज में क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को आप मैक्लॉरिन सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं। अब हर एक फंक्शन के लिए सिर्फ ये a0, a1, a2 ये डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से ये फंक्शन डिफरेंट बनता जाएगा। So for different values of a0, a1, a2, the function y will become different. So अब इन वैल्यूज को मैं अगर a0, a1, a2 फाइंड कर सका, a0, a1, a2, a3, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा and you will get y and y will be the solution of equation 1. लेकिन ये a0, a1, a2 हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफरेंट होंगे क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। सो सॉल्यूशन डिफरेंट का मतलब a0, a1, a2 डिफरेंट जब होंगे तो ये फंक्शन डिफरेंट बनता जाएगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। 1 implies देखिए y डैश प्लस y, अगर ये y डबल डैश होता तो मैं y डबल डैश भी ले लेता, यहां पे नहीं है तो मैं नहीं ले रहा। मैं y डैश की पहले समेशन वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, n इज इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी n a n x पावर n माइनस 1 प्लस summation of n is equal to 0 up to infinity. This is a n x power n which is equal to, अगर मैं ओपन फॉर्म में वैल्यूज पुट करूंगा तो ये a1 पहला सीरीज होगा a1 प्लस 2a2 x प्लस 3a3 x स्क्वायर प्लस up to so on and plus what? Plus a1 a0 y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं ओपन फॉर्म में a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इक्वल टू 0। मैंने ये वाली वैल्यू जो है y डैश की है और ये वाली वैल्यू y की है। सो अब मुझे y फाइंड करने के लिए इनफिनिट कांस्टेंट्स की जरूरत है, a0, a1, a2, a3। अगर ये सारे फाइंड हो सके तो y
फाइंड हो जाएगा। लेकिन एक इक्वेशन जब मैं y और y डैश की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास तो एक इक्वेशन है लेकिन अननोन ज्यादा है। सो फिर आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन से वैल्यूज निकालते हैं। सो अगर मैं कंपेयर कर लूँ x पावर 0 के कोएफिशिएंट्स, सो क्या मिलेगा मुझे? x पावर 0, एक तो x जो है a1 के साथ नहीं है और एक x जो है a0 के साथ नहीं है। लेफ्ट साइड पे ये दो टर्म्स हैं और राइट साइड पे मेरे पास 0 आ जाएगा। सो दिस एम्प्लाइज यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू मिल गई, a1 की वैल्यू मिल गई माइनस a0। अगर मैं इस वैल्यू को अपने साथ रख ले, अगर मैं x पावर 1 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लूं तो मुझे मिल जाएगा, एक तो इस टर्म के साथ x हैं और एक इस टर्म के साथ x हैं, तो मुझे मिल जाएगा 2a1 2a2। राइट साइड पे 0 होगा, सो मैं उसको a1 को भी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। सो 2a2 इज इक्वल टू माइनस a1। तो a2 क्या बन जाएगा? माइनस a1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन a1 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है विच इज माइनस a0, सो ये बन जाएगा a0 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, तो मैंने उसको लिखा a0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3a3 प्लस a2 इक्वल टू 0। सो 3a3 इक्वल टू माइनस a2। लेकिन यहां से मुझे मिल जाएगा a3 इज इक्वल टू माइनस a2 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन a2 की वैल्यू तो a0 बाई 2 है, सो ये बन जाएगा माइनस a0 बाई 6, और a0 बाई 6 जो है वो 3 फैक्टोरियल है। इसी तरह अगर मैं a4 की वैल्यू निकालना चाहूँ सो वो बन जाएगा, क्या बनेगा? देखिए, एक टर्म जब निगेटिव था दूसरा पॉजिटिव बना, फिर तीसरा निगेटिव है तो चौथा पॉजिटिव होगा। a0 पहले में भी है, इसको a0 बाई 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सो ये 4 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह a5 होगा माइनस a0 बाई 5 फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है ना जी? अच्छा जी। अब इन वैल्यूज को a0 a1 सॉरी a1 की वैल्यू जो आई, a2 की वैल्यू जो आई, a3 की वैल्यू और a4 की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करें? कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे। सो मैं y की वैल्यू क्या बन जाएगी? y क्या था? y क्या था याद है? a0 प्लस a1x प्लस a1x। a1 की वैल्यू माइनस a0 है, सो माइनस a0x बन जाएगा। a2 की वैल्यू क्या है? प्लस a2x स्क्वायर। a2 की वैल्यू तो a0 बाई 2 फैक्टोरियल है, सो a0 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह माइनस a0 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बन जाएगा। सो मैंने सारे वैल्यूज इसमें पुट किए एक्स क्यूब। अब आप देखिए नेक्स्ट टर्म पर प्लस होगा और सो ऑन। अब मैं इसको इससे लिख सकता हूं, देखिए इससे अगर मैं a0 कॉमन करूं इन सब से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
1 minus x plus x square divided by 2 factorial minus x cube divided by 3 factorial प्लस अप टू सो ऑन ये बन जाएगा, और ये इक्वल टू ए नॉट, ये ई पावर माइनस एक्स का सीरीज है, सो y इज इक्वल टू दिस वन। ये मेरा सॉल्यूशन बना जी। ये सॉल्यूशन बना, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा जी। अब आप देखिए, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, सो मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, y डैश ये इक्वल टू माइनस वाई बन जाएगा। इसको y डैश डिवाइडेड बाई y में लिख सकता हूं इक्वल टू -1। अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, log ऑफ y इक्वल टू माइनस व्हाट, x प्लस c। अगर मैं इसको log ऑफ y लिख लूं तो ये बन जाएगा e पावर माइनस x प्लस c। e पावर c को c1 लिख ले, सॉरी ये log ऑफ e पावर बन जाएगा, log of e power minus x, so this will become c1 log of c1 e power minus x। अगर आप एंटी लॉग लेंगे so y will become c1 e power minus x, तो डायरेक्टली भी वही आ रहा है ना, c1 मीन्स यहां पे a नॉट। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि कांस्टेंट की वैल्यूज कहाँ, जब मैं x पावर 0 के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा था तो कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, a1 से। a2 भी इन टर्म्स ऑफ a नॉट कन्वर्ट हुआ, a3 भी इन टर्म्स ऑफ a नॉट कन्वर्ट हुआ, a4 भी इन टर्म्स ऑफ a नॉट कन्वर्ट हुआ, और बाकी सारे कांस्टेंट्स a1 से लेके सारे कांस्टेंट a नॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो जब सारे कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप उस एक कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे और एक्चुअली वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बन जाएगा। क्लियर हुआ जी? बात समझ में आ गई? ये वाला थोड़ा रिपीट करें सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप जब कंपैरिजन कर रहे थे तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, कांस्टेंट की वैल्यू a1 से स्टार्ट हुई, a1 इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिला, a2 भी इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिला, a3 भी इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिला, सारे वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ a नॉट मिले। सो जब आपने y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर में वैल्यूज पुट किए तो एक्चुअली सारे कांस्टेंट विदाउट ए नॉट के बाकी सारे कांस्टेंट ए नॉट में कन्वर्ट हो गए थे। ए नॉट तो खुद ए नॉट था ना, तो जब आपने ए नॉट कॉमन लिया तो साथ में एक सीरीज बना, उस सीरीज से फंक्शन आप लिख लेंगे और वो ए नॉट जो कॉमन हुआ था वो साथ में आ जाएगा और वो वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बन जाएगा। सही है सर, ठीक। अच्छा जी, अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता,
अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, नोट दिस पॉइंट, तो आपकी वैल्यू पर A2 से स्टार्ट होती, A0 और A1 की वैल्यू न मिलती, डायरेक्टली A2 से स्टार्ट होती। सो A2 इन टर्म्स ऑफ A0 कन्वर्ट होता, A3 इन टर्म्स ऑफ, सो कुछ कांस्टेंट्स पर इन टर्म्स ऑफ A0 कन्वर्ट होते, कुछ A1 में कन्वर्ट होते। तो फिर आपके पास y में दो सीरीज बनते, एक A0 के साथ और एक A1 के साथ। A1 के साथ भी कुछ टर्म्स होती यहाँ पे, प्लस A1 इंटू सम टर्म्स। सो फिर दो सीरीज बनते, दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बनते, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल होते हैं ना जी। यस सर। अच्छा जी, सो सेकंड ऑर्डर में आपके वैल्यूज दो कांस्टेंट में कन्वर्ट होंगे, और फर्स्ट ऑर्डर में आपके सारे कांस्टेंट एक में कन्वर्ट होंगे, और थर्ड ऑर्डर में आपके सारे कांस्टेंट थ्री कांस्टेंट में कन्वर्ट होंगे। कुछ A0 में कन्वर्ट होंगे, कुछ A1 में कन्वर्ट होंगे, कुछ A2 में कन्वर्ट होंगे। ये मैं थर्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सेकंड ऑर्डर में कुछ कांस्टेंट A0 में कन्वर्ट होंगे, कुछ A1 में, और इसी तरह दो सीरीज बन जाएगी, A0 के साथ एक सीरीज और A1 के साथ। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सिर्फ A0 के साथ एक सीरीज होगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट A0 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से करने लगा हूँ। स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर आप जब समझ जाएंगे तो आपको सिंपल लगेगा। इससे पहले मैंने इसको ओपन फॉर्म में वैल्यूज पुट किए, अब मैं ये वाला फॉर्म ले रहा हूं, समेशन वाला फॉर्म। y की वैल्यू मैंने ये ली, y डैश की वैल्यू मैंने ये ली, ओपन वाली वैल्यू मैं नहीं यूज कर रहा। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, इसी तरह ये। सो मैं वो वाली वैल्यू अब यूज नहीं कर रहा। ठीक है जी, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेट, नोट करें स्टेटमेंट को, लेट टेक n-1 equal to k and n is equal to k in first and second summation and collecting the coefficient of x power k, we obtain अच्छा जी, मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसमें से जिस तरह मैं वहां पे x पावर 0 कंपेयर कर रहा था, x पावर 1 कंपेयर कर रहा था, x पावर 2 कंपेयर कर रहा था, जब x पावर 0 मैंने कंपेयर की, एक कांस्टेंट की वैल्यू मिली, x पावर 1 जब कंपेयर किया दूसरी कांस्टेंट वैल्यू मिली, और x पावर 3 जब कंपेयर किया एक तीसरी वैल्यू मिली। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी था, कितने कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे और कितने कांस्टेंट निकालेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था।
तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, मैं एक जनरल पावर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, x पावर k, मे बी k इज 100, मे बी k इज 200। सो k को आप कर एनी वैल्यू दे सकते हैं। जब 0 देंगे तो x पावर 0 बन जाएगा, जब 1 देंगे तो x पावर 1 बन जाएगा। सो नाउ x पावर k इज ए जनरल पावर। सो अगर मैं इस समेशन में, फर्स्ट समेशन में n-1 की जगह k पुट करूं, देखिए n-1 इक्वल टू k, और सेकंड समेशन में n की जगह k पुट करूं तो यहाँ पे x पावर k बन जाएगा और यहाँ पे भी x पावर k बन जाएगा। ये नोट करें इस पॉइंट को। इन फर्स्ट समेशन आई एम टेकिंग n-1 इक्वल टू k, एंड इन सेकंड समेशन I am taking n is equal to k to make the coefficients of x power k. So अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये होगा ना, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये होगा, ये इसका कोएफिशिएंट होगा और ये इसका कोएफिशिएंट होगा। जब मैं इस n-1 की जगह k पुट करूंगा तो ये x पावर k बन जाएगा, और जब मैं n is equal to k पुट करूंगा सेकंड समेशन में तो ये x पावर k बन जाएगा। सो अब इस पहले समेशन में x पावर k का कोएफिशिएंट क्या होगा और दूसरे समेशन में x पावर k का कोएफिशिएंट क्या होगा। सो जब मैं n-1 इक्वल टू k पुट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो पहले समेशन में जहां पे भी आपको n नजर आ रहे हैं उसमें k प्लस 1 लेके, तो मुझे नजर आ रहा था k प्लस 1, मुझे n नजर आ रहा था, मैंने उसकी जगह k प्लस 1 लिखा। फिर a n भी नजर आ रहे हैं तो a n की जगह मैं a k प्लस 1 लिख रहा हूं, लेकिन x पावर k तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसके कोएफिशिएंट को मैं लिख रहा हूं। दूसरे समेशन में मुझे a n नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे समेशन में मैंने n की जगह k पुट करना है। सो दिस विल गिव यू a k एंड राइट साइड पे 0 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? सर ये 0 के इक्वल क्यों लेते हैं? हाँ, 0 की इक्वल तो है, y डैश प्लस y इक्वल टू 0 है ना इक्वेशन में। यस ये समझ में आ गई ये बात, k प्लस 1 a k प्लस 1 प्लस a k इक्वल टू 0। यस सर। अगर ये n यहाँ पे अगर n-2 होता तो मैं n-2 को इक्वल टू k लेता और n k प्लस 2 बनता, तो फिर इस n की जगह मैं k प्लस 2 पुट करता और इस a n की जगह a k प्लस 2 पुट करता। ठीक है जी। अब a k प्लस 1 किसकी इक्वल बना? दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर k प्लस 1 इंटू a k। अब इस k की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी ये आपने डिसाइड करना है। k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, हमेशा नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन में 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज होंगे। क्यों? अगर मैं k को 0 वैल्यू दे दूं तो यहाँ पे a1 मिल जाएगा मुझे। a1 किस फॉर्म में मिल जाएगा? माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1 विच इज 1 और a0। सो a1 मुझे मिल जाएगा माइनस a0। अगर मैं k को 2 दे दूं, 1 दे दूं, सो ये लेफ्ट साइड पे बन जाएगा a2 इक्वल टू माइनस 1 ओवर, ये k अगर 1 है तो 1 प्लस 1 इज 2 और ये a k बन जाएगा a1, लेकिन a1 की वैल्यू तो आ चुकी है विच इज a0 बाई 2 बन जाएगा।
सो वही वैल्यू मिली जो हमने पहले ओपन फॉर्म से निकाली थी, दिस इज A2। अब आपके पास एक जनरल फार्मूला बना ये वाला, अब आप इसमें से k की एनी वैल्यू पुट करें, सो यू विल गेट ऑल कोएफिशिएंट्स। और जब कोएफिशिएंट्स मिल जाए तो उसी तरह जब जिस तरह हमने पहले पुट किया था पुट कर लेंगे एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्लियर है? सर जी सर ऊपर जो आपने k+1 की वैल्यू पुट की है इक्वेशन में, जी तो k+1 आएगा और x की पावर n-1 की जगह सर जी आपने k+1 पुट किए ना, ये k पुट किए, जी तो x की पावर k किधर गई है सर? x की पावर k, मैं उसके कोएफिशिएंट को ले रहा हूं ना, कोएफिशिएंट NaN है। अच्छा, उनके कोएफिशिएंट, ठीक है सर। हाँ मैंने लिखा है कि एंड कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर k वी ऑब्टेन। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, जब ये वैल्यूज आ जाएंगे तो अब आगे तो आपको मैंने जब दूसरे तरीके से कर रहा था तो वही मैंने किया, जब ये वैल्यूज आ गए तो मैंने उसी y में पुट किया और सॉल्यूशन मिल गया। तो यही प्रोसीजर है। अब आप देखें स्लाइड्स पे आ जाए, डिटेल मैंने सारा समझा दिया। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने अगर सॉल्व करना है तो अगर अगर ये अगर यहाँ पे y डबल डैश भी आ जाए, ठीक है जी, सो आप इसका y डबल डैश भी ले ले। y डबल डैश क्या होगा, अगर जरूरत पड़ी तो y डबल डैश आपका होगा इक्वल टू समेशन, दिस इज n-1 नीचे आ जाएगा, an और x का पावर n-2 बन जाएगा, x का पावर n-2 बन जाएगा एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू 0 अप टू इंफिनिटी। ये आपका y डबल डैश होगा। जिस इक्वेशन में, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डैश की जरूरत होगी, दिस इज y डबल डैश, दिस इज y डैश, तो उसके मुताबिक आप पुट कर लेंगे। ठीक है जी। सो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, px, qx और rx जो हैं ये एनालिटिकल फंक्शंस हैं। एनालिटिकल फंक्शन px, qx और rx जो हैं ये आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, जिसको हम काशी-आइलर इक्वेशन से डील नहीं कर सकते, तो हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे डील करेंगे जिसके कोएफिशिएंट px, qx और rx को मैंने पहले बताया आपको। और सिर्फ ये है कि ये फंक्शन एनालिटिक होंगे। एनालिटिक मींस कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो कोएफिशिएंट्स हैं ये एनालिटिक होंगे, मींस कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। अब देखिए इस एक बात को नोट करें, आप जो ये जो px होगा, जो कोएफिशिएंट px होगा, ये सपोज यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस केस में px क्या है आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। px क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। यस सर। अच्छा, अब ये px जो है ये किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। किस पॉइंट पे, उस डोमेन के किसी पॉइंट पे ये जीरो नहीं होना चाहिए। डोमेन मींस आपके प्रॉब्लम का जो डोमेन होगा ये उस डोमेन के किसी पॉइंट पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी पॉइंट पे जीरो बन जाए, सपोज ये x इज इक्वल टू 1 पे जीरो बन रहा है ना,
ये x इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू जी x इज इक्वल टू 1 पे 0 बन रहा है ना। जी सर। अगर ये किसी पॉइंट पे 0 बन जाए तो फिर उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट? सिंगुलर। सिंगुलर पॉइंट। अच्छा जी, जिस पॉइंट पे ये हायर ऑर्डर का कोएफिशिएंट 0 बन जाए उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों? मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लूं। आपके पास ये एक फंक्शन है, ये इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम कहते हैं। ये फंक्शन जो है किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे इसका टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, सो इट मींस दिस इज डिफरेंशिएबल। अगर हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे सो दिस मींस दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो अब थोड़ा सा एक और ग्राफ ले ले। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लूं, दिस वन देन दिस वन, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट A है, x इज इक्वल टू A, तो जैसे आप A के करीब जाते हैं ये फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना। यस सर। अच्छा जी, तो जिस पॉइंट के करीब फंक्शन अनसर्टन वैल्यू दे दे उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। अनसर्टन वैल्यू मींस सपोज आपका एक मास डिके प्रोसेस है, आपने 2 ग्राम मास लिया इनिशियली, सो 10 सेकंड्स में आपका ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि ये मुसलसल डिक्रीज होगा, 2 ग्राम से 1 ग्राम बनेगा और इसी तरह डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन 0 और 10 सेकंड्स के दरमियान में से अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे कि वो 5 ग्राम बना है या 100 ग्राम बना है, इज इट पॉसिबल? एक मास है 2 ग्राम, वो मुसलसल कंटिन्यूसली डिके हो रहा है। अगर 0 और 10 सेकंड्स के दरमियान में या मिनट्स के दरमियान में मैं उसको ऑब्जर्व करूं तो वो मुसलसल डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूं और डिफरेंशियल इक्वेशन से मुझे ये नजर आ जाए कि 5 सेकंड पे तो ये 10 ग्राम बना था, तो इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब ये होगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हायर ऑर्डर है वो डोमेन के उस पॉइंट पे जहां पे अनसर्टन वैल्यू मिल रही है उस पॉइंट पे वो 0 हो रहा होगा। तो अगर उस पॉइंट पे हायर ऑर्डर कंट्रीब्यूट ना करे, क्योंकि हायर ऑर्डर पे वो टर्म 0 हो रहे हैं ना, हायर ऑर्डर 0 हो रहे हैं, सो अगर वो कंट्रीब्यूट ना करे तो उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट होती है। सिंगुलरिटी मींस कि आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, एक्चुअल वो ऐसे नहीं है, लेकिन आप न्यूमेरिकली या डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये किसी पॉइंट पे पॉसिबिलिटी है कि सिंगुलरिटी आ जाए। सो बात समझ में आ रही है? सो मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही है। अच्छा जी, अब देखें ये वही है सिंगुलर पॉइंट, इसको आप देख लें। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन को टेलर सीरीज से हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और टेलर सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के फॉर्म में, और मैक्लॉरिन सीरीज में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, इसका सम ऐसे होगा, अगर सम इनफिनिट बन जाए तो ऐसे होगा, ये ऑलरेडी वही चीज है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं,
केस का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट का वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1 होगा। सो इसको आप देख ले इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए साइन एक्स, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैंने साइन एक्स की जगह ई पावर एक्स लिया था। अगर मैं इसको इसका एक टर्म ले लूं, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली ले लूं, बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट करूं, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जी। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अगर उसके साथ एक और टर्म ऐड करूं एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बाकी नेग्लेक्ट करूं, तो मुझे अब नहीं पता कि इसमें से वो कौन सा ग्राफ होगा, लेकिन इसमें से एक और ग्राफ आपको मिल जाएगा। अगर एक और टर्म ऐड करें एक और ग्राफ मिल जाएगा, एक और टर्म ऐड करें एक और ग्राफ मिल जाएगा। सो जितने टर्म्स आप इंक्रीज करते जाएंगे, एट द एंड यू विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द ब्लैक कलर ग्राफ जो नजर आ रहे हैं, एंड दैट विल बी द एक्चुअल ग्राफ ऑफ साइन एक्स। सो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप टर्म इंक्रीज करेंगे, ये ग्राफ अपनी पोजीशंस पे कन्वर्ज होता जाएगा। सो दिस वन इस सिमिलरली ई पावर एक्स के लिए अगर आप पहला टर्म लेंगे तो ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1, बाकी को नेग्लेक्ट करें, सो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज दिस वन रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर। अगर आप और टर्म्स ऐड करें, सो एक्चुअल ग्राफ आपका ये होगा जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो जितने टर्म्स आप इंक्रीज करते जाएंगे, यू विल कन्वर्ज टू द एग्जैक्ट ग्राफ। लेकिन ये आप चूंकि कंप्यूटर से होते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए थे। अब देखिए, दिस इज टेलर सीरीज, दिस इज मैक्लॉरेन सीरीज, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। x+1 का टेलर सीरीज ये होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द log of 1 plus x ग्राफ। अगर आप पहला x लेंगे, so you will get a straight line represented by the red color passing through the origin, and if you add more and more terms, so ये देखें, ये 0 0 और 0.-5 और 0.5 के दरमियान में तो टर्म्स का डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 1 से आप बढ़ते हैं, देखिए ग्राफ को देख ले, 1 से जब आप इंक्रीज करते हैं तो फिर आपके सारे ग्राफ्स में फर्क नजर आ रहा है ना आ रहे हैं आपको नजर? यस सर। अच्छा, ये क्यों है? ये देखिए सारे ग्राफ कोलैप्स हो रहे हैं बिटवीन व्हाट 0.7 और -0.7 के दरमियान में ग्राफ सारे ओवरलैप कर रहे हैं। सारों का क्या मतलब है? मतलब जी 2 टर्म्स ले ले, फिर 3 टर्म्स ले ले, फिर 4 ले ले, उन सब का ग्राफ कंबाइनली 0.7 और -0.7 के दरमियान में कोलैप्स है। लेकिन जैसे आप डोमेन इंक्रीज करते हैं, सो एक्चुअली आपको और टर्म्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। सो देयरफॉर फॉर लार्ज डोमेन यू हैव टू ऐड मोर एंड मोर टर्म्स। सो लास्ट में ये ग्राफ सेम नजर नहीं आ रहे। ये क्लियर है ना ये बात? जी सर। अच्छा जी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। वही बात है कि कन्वर्जेंस x नॉट जो है के करीब है। एफ पी इज ग्रेटर देन 1 द पावर सीरीज x माइनस एक्स नॉट इज ग्रेटर देन रो और x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन। इन्होंने थोड़े से रो में किए हैं, चलिए इसको आप न देखें। हमने ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1, चूंकि हम मैक्लॉरेन पे काम कर रहे हैं, इन्होंने टेलर का किया है। अच्छा जी, ये आपके मैक्लॉरेन सीरीजेस हैं। साइन एक्स का ऑलरेडी आप कर चुके हैं, कॉस एक्स का, ई पावर एक्स का और log ऑफ 1 प्लस एक्स का, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स का टेलर सीरीज कैसे निकालेंगे, कॉस एक्स का। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, ये कैसे लिख रहे हैं? ये देखिए x का पावर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इसका मतलब ये है कि x का पावर ऑड फॉर्म में इंक्रीज हो रहे हैं।
So every odd number can be written in the form of 2n plus 1. थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आया था, क्लास इतना नहीं रहता। सो हम अगर इसको y डबल डैश, ये एग्जांपल यहाँ पे खत्म हुआ था ना, नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। सो आप देख ले, इसके जो एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया, ये एग्जाम्पल 2 है, बिल्कुल उसी तरह जो हमने किया है एग्जाम्पल 2। y ले ले, y डैश ले ले, y डबल डैश ले ले, इसमें वैल्यू स्पॉट करें। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे n-2 की जगह k पुट करेंगे ना, क्या पुट करेंगे, यहाँ पे n-2 की जगह आप जी सर आप स्क्रीन शेयर करें। अच्छा 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 जी, ये अब सेकंड एग्जांपल है, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। so your y is this one, y dash is this one, and y double dash has become n minus 1 a n x power n minus 2. so if you put the value of y double dash and the value of y in equation 1, so you will get this one, n minus 1 a n x n minus 2. now you will put n minus 2 equal to k, and n is equal to k plus 2, and first summation, and n is equal to 2, n is equal to k in second summation, and फर्स्ट एंड सेकंड समेशन यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिख ले, रेस्पेक्टिवली, एंड कलेक्टिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ x पावर k v ऑफ 10, हमें क्या मिलेगा ये मुझे बता दे आप जी। यहाँ पे n की जगह क्या पुट करें, n की जगह a प्लस 2, k प्लस 2, फिर n माइनस 1 की जगह क्या पुट करें, k प्लस 1, और a n की जगह क्या पुट करें, a k प्लस 2 इक्वल टू, इसको मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, दूसरे समेशन में n की जगह k पुट करें, ये माइनस a k बन जाएगा। सो a k प्लस 2 क्या बना, a k प्लस 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर k प्लस 2। सो बहरहाल ये बन जाएगा, देखें ये जो एग्जांपल में है ये बन जाएगा a n प्लस 2 इक्वल टू माइनस a n डिवाइड बाई n प्लस 2 n प्लस 1। n कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से, सो यू विल गेट a2, a4, a6, a और a1, a3, a5, a7। इन वैल्यूज को कहाँ पे पुट करेंगे, y में, इसमें पुट करें, तो you will get two series, one is of cos x and another is of sin x, so a0 cos x बन जाएगा और a1 sin x बन जाएगा। जी समझ में आ गई बात, ये जब आप ओपन करेंगे तो फिर पता चलेगा। बहरहाल जिस तरह हमने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था उसी तरह है, ठीक है जी। ओके सर। सो उसी तरह एग्जाम्पल 3 भी है और एग्जाम्पल 4 भी है, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। सो ये पेज 44 तक हैं, ये आप कर ले, यहाँ तक हमारा क्लास था, फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये 4 एग्जाम्पल्स आप कर ले, इसमें उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, जिस तरह मैंने एक एग्जाम्पल डिटेल से कराया था उसी तरह ये भी है।